नंबर 16 ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਐਸਸੀ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲਾ 4-5 ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਉਹ 2x2 ਦਾ ਬਣੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 2006 ਬਿਲਕੁਲ 6 ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਵਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨਾ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਈਏ ਦੋ ਟੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੀਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖੀ ਦੀ ਗਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਓ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਜੇ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਲਾਈ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਡ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਕਰੀ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਥ ਭਰੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਿਆ ਨਗਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਰੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਐਫਡ ਲੈ ਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫਡ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਥੋੜੀ ਘਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁਰਾਏ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਰਾਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਆਈ ਕਹੂੰਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹਾਲੋ ਪਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭਰ ਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਕੋ ਸਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਵਰਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਹੈ ਕੋਲੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕੁੱਤਾ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਿਰਾਨੀ ਉਹ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ 4 ਘਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 2-3 ਘਰੇ ਵੀ ਆਈ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਨਾਂ ਲੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਲਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਓ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਆਉਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਲਿਖਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਏ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ वार्ड नंबर 16 के 80 बस्ती से सभी आए हैं लोग आए हैं मेरे साथ और अपने प्रेसिडेंट के साथ हमने कुछ समस्याओं का समाधान के लिए उनको मिलने का प्रयास किया और कुछ हमारे मसले हैं जैसे ग्रांट्स का जैसे कि हमारे नाले का मसला सीवरेज का और कई गलियों का उद्घाटन हुआ है वो रुकी हुई हैं क्यों रुकी हुई हैं आपसी कोई इनके कोई केस कूस लगे हुए हैं हमें उसका कोई वो नहीं है हमें डेवलपमेंट बिल्कुल पिछड़ा हमें बिल्कुल पीछे हो गए हैं डेवलपमेंट के तरीके से
तो हम इसी सिलसिले से प्रेसिडेंट साहब से मिलने आए हैं और उन्होंने भी हमें कल का टाइम दिया है कि हम मौके पे जाएंगे और मौका पूरा देखेंगे। इसी से हम ये आश्वासन लगाते हैं अपने प्रेसिडेंट से कि हम इनसे अच्छी उन्नति के लिए आस रखते हैं और ये हमारा मौका दे के, हमारे गलियों का मौका दे के, हमारे सीवरेज का मौका दे के और उस पर जो हमारी ग्रांट्स रुकी हुई हैं उनके लिए सभी को एक एक घर में मैं इनको लेके जाऊंगा और उसका समाधान करवाऊंगा। यही आज से हमारे साथ इन्होंने लगाई है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये कल आएंगे और ये पूरा भरपूर हमारे साथ देंगे और हर चीज़ में। वहाँ पार्षद भी है, उन्होंने क्या कोई काम नहीं करवाया? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा डेवलपमेंट हो रही है, तरीके से हो रही है, लेकिन जो होनी चाहिए डेवलपमेंट वो नहीं हो रही, क्योंकि हमारे उधर कुछ ऐसे मसले हुए हैं जैसे कहीं पार्षदों को इन्होंने दिए हैं कोई वो बेंच दिए थे कि इन्होंने बैठने के लिए, बेंच वो पार्षदों के घर पे लगे हुए हैं। आप बेशक वेरीफाई कर सकते हो, वो पार्षदों के घर के लिए किसी ने बेंच नहीं दिए, चौराहों के लिए दिए हैं। चौराहे पे किसी के बेंच नहीं लगा हुआ है, वो देख लीजिए। आज शायद आप मीडिया के थ्रू ये पता चल जाए उनको कि वो बेंच बाहर लगा दें, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन तब भी बेंच उनके घर में लगे हुए हैं। और हम ये आश्वासन देते हैं, काम कोई भी रुकना नहीं चाहिए। हमारे 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ नाम की वजह से, और काम वहाँ कुछ नहीं है। छोटा सा नाला दे दिया है, आबादी बहुत है, छोटा 2x2 का नाला। वहाँ बरसात में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इन फ्यूचर बरसात में वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और मैं तब भी आपको मीडिया बंधु को ये करूँगा कि आप वहाँ आएंगे, देखेंगे कि हमारी बरसात में क्या हालत होती है। आपको विस्तार से बता दिया है कि आज हमारे वार्ड नंबर 16 के निवासी आज यहाँ पे डेपुटेशन लेके आए हैं, जो कि म्यूनसिपल काउंसिल के अध्यक्ष नरेश शर्मा जी और उपाध्यक्ष रेखा जी के समक्ष हमने कुछ इश्यूज रखे हैं, अपने मेजर इशू, जिसमें सीवरेज वगैरह है, यहाँ लेन एंड ड्रेन, बरसात आती है तो घरों में लोगों के पानी जाता है। इसी के संदर्भ में उनके सामने हमने ये कुछ इश्यूज़ रखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि कल वह शाम को आएंगे मौका देखने और इन समस्याओं का जल्दी ही जल्द हल करेंगे। बड़ी संख्या में तादाद में लोग आपके पास पहुंचे, किस तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है और कब तक उनको म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से राहत पहुँचाई जाएगी? वार्ड नंबर 16 के निवासी और कालीबड़ी एरिया के, और ख़ास करके जो एससी मोहल्ला है वहाँ बहुत बड़ा, वहाँ के लोग यहाँ आए थे तो छोटी छोटी जो समस्या उन्होंने बताई और मैं आपके माध्यम से, आपने भी कवर किया है। सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि जो शौचालय म्यूनसिपल काउंसिल ने बनवाए हैं, जो मोदी साहब का नारा था हर घर में शौचालय हो, क्या वो आपके घरों में बने नहीं बने? 98% लोगों ने कहा कि हमारे घरों में शौचालय बनाए गए हैं और म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से बनाए गए। फिर उसके बाद दूसरा हमने पूछा कि जो हाउस फॉर ऑल, जो मोदी साहब ने आपको मकान बनाए हैं जिन लोगों के छत नहीं थे, जो उनका सपना है कि 2022 तक हर घर को, हर इंसान को जिसके पास छत नहीं है वो छत मिलेगा, तो वो भी आपके सामने वहाँ पूछा गया तो वहाँ भी 95% लोगों ने कहा हमको छत मिले हैं। जो लोग रह गए हैं कोई राजनीति के शिकार हुए हैं, कुछ लोग, बरादरी उन्हीं की है, मोहल्ला उन्हीं का है, लेकिन कुछ लोग राजनीति के शिकार हुए हैं। वो कहना चाहते थे कि वो हमारी पार्टी की काउंसलर नहीं थी इसलिए हमारे लोगों ने, हमने वोट नहीं डाले थे, हमारे काम नहीं हुए। लेकिन हमने जहाँ म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर बैठे हैं, चाहे किसी ने वोट दिए, चाहे किसी ने वोट नहीं दिए, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट है, चाहे हमारी पार्टी के मैक्सिमम है, हमारी पार्टी की यहाँ हुकूमत है, लेकिन हमने कहा हम सबको देंगे। मोदी साहब ने ये नहीं कहा है कि फलाने को देना है, फलानी जात को देना है, फलाने को देना है, फलाने को। उन्होंने कहा जिसके पास नहीं है उसको हमने छत देना है, लेकिन जो लोग रह गए हैं उनको यकीन के साथ कहा आप अपने कागज़ जमा करवाएं हमारे पास और कागज़ हमें दें, डायरेक्ट दे दो हमें। जहाँ वाइस प्रेसिडेंट रेखा जी उसी मोहल्ले में थोड़ी दूर रहते हैं, जहाँ उनको दे दो, चाहे हमारे कोई और साथी, मैंने कहा तो उनको दे दो जिन लोगों ने वहाँ इलेक्शन भी लड़ा है हमारी पार्टी के लोगों ने, चाहे कागज़ उनको दे दो, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो और जो उन्होंने कहा नाले के बारे में, लेन ड्रेन के बारे में, काम हमने वहाँ बहुत किए हैं। अभी वहाँ 10 साल ला के 2 नाले हमने बनवाए हैं, 1 नाला 2 नाले और बनाने वहाँ जा रहे हैं, वो सैंक्शन है।
टेंडर अलॉटमेंट है, लेकिन वो कहते हैं आप मौका आके देखें, एक ही महल्ले के अंदर इतने पैसे लगे, वो कल हम चेक करेंगे। जिन लोगों को पास अभी नहीं पहुंची है हमारी लेन ड्रेन, उन लोगों को भी कल यकीन के साथ हम कह के आएंगे, आपके भी काम होंगे, सबके काम होंगे, सबका साथ, सबका विकास, हम सबके काम करेंगे। सर, स्थानीय लोगों का ये भी कहना था कि जो म्यूनसिपल काउंसिल द्वारा बेंच दिए गए हैं लोगों के बैठने के लिए, सार्वजनिक जगहों के लिए, वो कुछ लोगों ने घर में लगाया हुआ है, उनके लिए क्या था? जिन लोगों ने घरों में लगाया उसकी इंक्वायरी करेंगे, उनको पूछेंगे। वे हमने दिए थे चौकों चौराहे में लगाने के लिए, जहाँ आम लोग, बुजुर्ग लोग गली मोहल्लों में कहीं चौक में बैठते हैं 4 लोग शाम को या दिन को, जो बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर लोग हैं, तो अब हमने तो उनके लिए दिए थे। लेकिन कहीं अब कहीं मंदिरों के बाहर लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ दिए हैं, या कहीं कोई हमारा पैसेंजर शेड है वहाँ के लिए दिए हैं, तो चौक चौराहे के लिए दिए थे। अगर वो इनकी पर्सनल कोई होगा, कोई देखा होगा, तो उसको भी हम देख लेंगे। भाई लोगों के लिए भेजे हैं, लोगों को लगाएं, उसको भी चेक कर लें।